Hello students, with this video we are going to start the chapter number 9 of your biology course, that is strategies for enhancement in food production. As the name suggests, this chapter will talk about all the efforts, all the strategy, all the management skills, all the technologies which have been applied to increase the food production. Now the question comes, what is the need of increasing the food production? The reason, very simple, we are cutting down forests, so agricultural lands are also getting destroyed. It's not just the forests, agricultural lands are also getting destroyed. You can see around your area, maybe your area where you have your home now, that used to be an agricultural field some 10 years back or 20 years back, but now there is a home. There are multiple examples of that one, but at the same time, although we are decreasing the agricultural land, we are increasing the population. If you remember the chapter number 4 or 13, organism and population, I had talked about population, the Malthus theory. It says that increase in the population is geometrical, but increase in the food production is arithmetic. मतलब population will increase 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32. This way geometrical rise happens, but in food production 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, this way. So जाहिर सी बात है, we need some technologies to increase the food production, otherwise there will be starvation. अभी भी आप जानते हो more than 30% of the world population sleeps without eating a single time of food every single day. सोच सकते हो आप कितनी गंदी प्रॉब्लम है आज के सिचुएशन में भी, where people talk about we have been advanced technologically, फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम है. So we'll talk about this thing. Now when it comes to food, it both the things. People are vegetarian, people are non-vegetarian. Even if people are vegetarian, they are dependent on one way or other way on animal products like milk, curd, yogurt, cheese, butter, ice creams, whatever. And those who are non-vegetarian, of course they eat the meat and also. So हमें दोनों चीज़ देखनी है to increasing the animal quality and increasing the plant quality. So two different things we'll talk about in this one. The first half we'll talk about animal stuffs, how to enhance the food production when it comes to animal. ठीक है, तो पूरा chapter will be divided in two branches, animal husbandry and plant breeding. So let's begin with animal husbandry. Here we are going to focus on all the ways to improve the food quality with respect to animals. So the first thing is animal husbandry. Animal husbandry is also a part of agriculture. Okay, this deals with feeding मतलब खाना पीना, breeding मतलब reproduction, हाउसिंग रहने होने की व्यवस्था, एंड हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक मतलब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं. लाइफ स्टॉक रेफर्स टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे काउ, शीप, बफेलोज, हॉर्सेस, पिग, कैमल, गोट्स. अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जानवरों को डोमेस्टिकेटेड मतलब पाला जातना. ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ branch of agriculture which deals with feeding, breeding, housing and healthcare of livestock. Now come, what is livestock? The livestock are मवेशी, हिंदी में बोलें तो जो आपके घरों में पाले जाते हैं, ऐसे ही फालतू के घूमने वाले नहीं. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर कॉल्ड लाइवस्टॉक, लिविंग चीज़ों का स्टॉक, लाइवस्टॉक सच एज काउ, शिप, गोट, कैमल, एवरीथिंग. So when it comes to animal husbandry, in animal we mean only domesticated animals. क्लियरली रखना दिमाग, किसी भी एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम घर में पालते हैं. ठीक है, इसके अलावा वी ऑल्सो टॉक अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज. पोल्ट्री फार्मिंग जो चिकन वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड द फिशरीज. फिशरीज में फिर क्या होता है,
सेम थिंग, ब्रीडिंग, rearing, कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिशेस, क्रस्टेशियंस, जैसे कि लोग प्रॉन्स खाते हैं, क्रैब्स खाते हैं, शेलफिश खाते हैं, ऑक्टोपस भी खाते हैं, मीन्स सी एनिमल्स, सो ऑल दिस थिंग्स। ओके, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का 70% जो लाइफ स्टॉक है, मतलब मवेशी जो पाले जाने वाले हैं, दे आर प्रेजेंट इन ओनली 2 कंट्रीज़, इंडिया एंड चाइना। लेकिन ये दोनों कंट्री मिल के दे कंट्रीब्यूट ओनली 25% ऑफ द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। दुनिया का 70% एनिमल इन्हीं 2 कंट्रीज़ में रहता है, लेकिन ये लोग उसको यूज़ करके सिर्फ दुनिया का 25% फूड क्वालिटी को ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट सिंपली मीन्स देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू दीज 2 कंट्रीज़। आपके पास दुनिया का 70% डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, बट यू आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 25% टू द टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर ईयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री हमने देखा। व्हाट डज हस्बेंड्री मीन? हस्बेंड्री सिंपली मीन्स मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक अफेयर, वेयर यू टॉक अबाउट, जो हमने बताया, फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर, या और भी कोई चीज़ें जो किसी चीज़ की सेवा भावना रखता है ताकि उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड एनिमल्स क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पहले थिंग है, लाइफ स्टॉक्स वी आर डिपेंडेंट फॉर डेयरी एंड मिल्क एंड other dairy products such as milk, yogurt, cheese, butter, ice creams, everything, right? Then meat, people who are non-vegetarian eat meat for their energy and protein source। ठीक है, लैंड मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वी नो दैट व्हेन गोट्स, शीप्स और कैटल्स व्हेन दे ग्रेज द लैंड, उससे क्या होता है, घास तो वो खाते ही हैं, साथ साथ दे ईट द हार्मफुल वीड्स ऑल्सो, जिन पत्तों की ज़रूरत नहीं होती है उसे भी वो खा जाते हैं, तो फालतू के प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं और लैंड फर्टाइल रहता है। देन फाइबर्स मीन्स वुल, लेदर, किससे मिलते हैं हमें? शीप, गोट्स, इन सब से मिलते हैं, तो उसके लिए भी ये लोग ज़रूरी हैं, राइट? देन फर्टिलाइजर्स, organic fertilizers, manures, we know that cow dung or any cattle dung is rich in nutrient minerals. They are biodegradable. When they are kept inside the soil for some time, they get converted into fertilizers, that is called manure or organic manure, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, so here we will talk about first of all dairy farm management। ठीक है, मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशनल आइडिया। ठीक है, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंबाइनिंग आइडियाज़, फैसिलिटीज़, प्रोसेसेस, मटेरियल्स एंड द लेबर टू प्रोड्यूस एंड मार्केट और सर्विस और प्रोडक्ट। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है, साइंस है, जहाँ पे हम आइडियाज़ को, फैसिलिटीज़ को, जो भी प्रोसेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी मटेरियल है, लेबर है, उसको कंबाइन करके मार्केट करने की कोशिश करते हैं एक प्रोडक्ट या सर्विस को, दैट इज़ मैनेजमेंट। ओके, सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ओके, तो डेयरिंग होता क्या है? ठीक है, डेयरिंग इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सिंपल सी चीज़। ठीक है, जैसे जो आप खाते हो, जैसे काउज, बफेलोज, गोट, शिप्स, इनको हम यूज़ करते हैं किस लिए? फॉर मिल्क एंड देयर अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज़, योगर्ट, कर्ड, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो पहली चीज़ डेयरी की जो, एंड ऑफ कोर्स मीट एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ठीक है, काऊ का जो मिल्क होता है वो काफ़ी हेल्दी माना जाता है, काउज एंड बफेलोज का। एंड काऊ का जो मिल्क होता है दैट इज़ समवॉट येलो कलर, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन होता है। बफेलो का मिल्क बहुत ज़्यादा येलोइश नहीं होता बिकॉज दैट डजंट कंटेंट कैरोटीन। देन घी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ बीइंग सेड दैट घी इज़ द food which gives most energy out of any food present in the world। okay, that is being assumed। दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा फूड नहीं है जो उससे ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, तो दैट इज़, अब बात आती है क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे एसेंशियल चीज़ें जो मिल्क और मिल्क रिलेटेड क्वालिटी को बढ़ाना है, दैट इज़
जो इम्पोर्टेंट है, ब्रीडिंग, वीडिंग, फीडिंग एंड हीटिंग। ठीक है, ब्रीडिंग का मतलब क्या है, अच्छी क्वालिटी के मेल एंड फीमेल एनिमल्स को सेलेक्ट करना फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब सुपीरियर क्वालिटी के लिए। वीडिंग मीन्स अनइकोनॉमिक एनिमल्स मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रिप्रोडक्शन, मतलब एक ऐसा एनिमल, मान लो आपके पास एक ऐसा गाय है, बैल है, भैंस है, जो अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उसके मिल्क बहुत ज़्यादा मिल्क वगैरह नहीं देती है, तो दैट इज़ वीडिंग, मतलब ऐसे को अब ख़त्म करना, उसको अपने सामने से हटाना है, उसको अपने फार्म से हटा देना है। ठीक है, मार नहीं देना है, use for some other purposes. Then feeding is also important. You need to find the right balance of food for cattle. And then heeding का मतलब क्या होता है, paying attention. You have to pay attention to all the general animal management stuffs, supervising their housing care, maintenance of cleanliness and hygiene, everything. वाटर की व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है, नाउ when it comes to breeding, सुपीरियर क्वालिटी के एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, जो भी आप स्पीसीज सेलेक्ट कर रहे हो दैट इज़ फ्री ऑफ डिजीज़। ठीक है, अगर वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है तो जितना भी उसे आप खिला रहे हो उसके हिसाब से वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मीन्स हाई इल्डिंग, इसको इल्ड बोलते हैं, मतलब जो प्रोड्यूस करेगा इल्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। तो ऑल द सेलेक्टेड वेराइटीज़ और द स्पीसीज, या जनरली जिसको हम एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं, ब्रीड्स शुड बी हाई इल्ड, डिजीज रेसिस्टेंट, डिजीज़ फ्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देयर हाउसिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्लीनलीनेस अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए उनके लिए। देन देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड द प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ क्या होता है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हमने कई बार बात किया है। ठीक है, तो ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए अप्लाई नहीं होता, इट अप्लाइज टू एनिमल्स ऑल्सो, अगर उससे आप फ़ायदा चाहते हो तो। ठीक है, तो एनिमल क्या खाते हैं, पीते हैं, सोते कैसे हैं, हर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है। देन देयर शुड बी सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, मीन्स एडिक्वेट वेंटिलेशन, हवा का व्यवस्था होना चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, सफिशिएंट लाइट, वाटर, एयर। ठीक है, एंड ड्रेनिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ड्रेनिंग मतलब जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, या जैसे गाय भैंस वगैरह क्या है, दे यूरिनेट, तो उनका यूरिन वहीं पे पड़ा रहता है, तो उसको बाहर निकालने का व्यवस्था होना चाहिए, ड्रेनेज का। देयर मस्ट बी रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, एनिमल ऐसा क्वालिटी हो जिसके अंदर जल्दी डिजीज़ ना आता हो। ठीक है, एंड रेगुलर इंस्पेक्शन शुड बी देयर बाई वेटेरिनरी डॉक्टर्स, जो गाय भैंस के वेटेरिनरी डॉक्टर्स होते हैं उनका भी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले फार्म को लेके, एनिमल्स को लेके, जो आपने सुना होगा वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, मिल्क क्रांति के हिसाब से जो बोलते हैं, दूध क्रांति हिंदी में, वाइट रेवोल्यूशन, वो किसने शुरू किया था? आपने मिल्क वगैरह देखते हो, पाउच आता है अमूल का, अमूल वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव ब्रांड ऑफ इंडिया। इसको स्टार्ट किया था वर्गीज़ कुरियन ने, इंडियन थे वो, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में अमूल स्टार्ट हुआ था, एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वर्गीज़ क्यूरियन। ठीक है, VERGHESEKURIEN, या REIN भी लिखते हैं। ठीक है, तो और जब आप ब्रीड सेलेक्ट करते हो अच्छी क्वालिटी का, तो उसका जेनेटिक मेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पोल्ट्री जब आप यूज़ करते हैं, देन वी टॉक अबाउट बर्ड्स एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स फॉर द डोमेस्टिकेशन पर्पसेस फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब कि आप बर्ड्स वगैरह को ग्रो करते हो, जैसे चिकन वगैरह, तो क्या है, बर्ड्स है, उसको हम फाउल भी बोलते हैं, FOWL, फाउल। तो पोल्ट्री मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाउल और बर्ड्स फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, जैसे कि चिकन्स, टर्कीज, डक्स, स्वान्स, गिनिया पिग्स। ठीक है, पिजियंस, क्वेल्स, ये सब क्या होते हैं, पोल्ट्री के अंदर आते हैं। हमारे कंट्री में मोस्टली चिकन्स को ग्रो किया जाता है फॉर एग एंड मीट, यही दो पर्पस है जिसके लिए चिकन को यूज़ किया जाता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, मतलब कि एक ऐसा स्पीसीज जो डिजीज़ से फ्री हो और
उसके लिए सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन हो। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चिकन और द ब्रीड विच इज़ यूज्ड इज सिंगल कॉम वाइट लेगहॉर्न, ठीक है, सिंगल कॉम वाइट लेगहॉर्न बोलते हैं। दूसरे जो हैं वो हैं न्यू हैम्पशायर ब्रीड्स एंड प्लाईमाउथ रॉक, कॉर्निश ब्रीड्स। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सिंगल कॉम, जिसके सिर पे जो लाल पीला हरा नहीं निकल रहा है, तो एक सिंगल हो, दैट इज सिंगल कॉम। देन ब्रूड हाउस, ब्रूड हाउस मीन्स जो उनका रहने का जो व्यवस्था है, दैट शुड बी क्राउड फ्री, रेन प्रूफ, प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स, मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो चिकन वगैरह को मार को खा जाता है उसे बचने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी देयर, आई मीन द हाइजीन शुड बी देयर, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये चिक्स वगैरह जो आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको चिक्स बोलते हैं चिकन के, ठीक है। तो उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। उनके लिए माना जाता है कि जो उनको जो वाटर दिया जाता है, ठीक है, वो स्वीट वाटर दिया जाता है जिसमें गुड़ वगैरह मिलाते हैं। पर लीटर वाटर 50 ग्राम ऑफ गुड़ शुड बी मिक्सड, ठीक है। एंड देन दलिया शुड बी गिवन इन एवरी 24 to 28 आवर्स, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो उनके दूसरे एडिशनल वाइटामिन्स एंड फूड वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान है। तो मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब चिक्स नया आते हैं बच्चे, तो दे शुड बी गिवन स्वीट वाटर, 50 ग्राम ऑफ गुड़ शुड बी मिक्सड पर लीटर ऑफ वाटर, दलिया शुड बी गिवन। देन द फीड मैनेजमेंट, मतलब उनके न्यूट्रिएंट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड लाइट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर द हाई एग प्रोडक्शन, दे शुड बी गिवन एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स ऑफ लाइट, ठीक है। मान लो सनलाइट तो 12 घंटे ही होता है, अगर पूरा सुबह का उतना तो होता भी नहीं है, तो इसी कारण आप देखते होगे जो फार्म होता है चिकन वगैरह का, जिसके अंदर वो बंद होते हैं, लाइटनिंग की व्यवस्था की जाती है, बल्ब वगैरह होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, बिकॉज जितना कम से कम 14 से 16 घंटे की लाइटनिंग होनी चाहिए फॉर हाई एग प्रोडक्शन, ठीक है। लाइटनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने चैप्टर नंबर ऑर्गेनिज्म 13 में भी बात किया था। कुछ प्लांट्स, एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके यहाँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होता है एम्ब्रियो का, लाइट पे डिपेंडेंट होता है। देन समर मैनेजमेंट, ये जो चिकन्स वगैरह होते हैं, दे कैन स्टैंड विथ स्टैंड कोल्ड, ये ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं, बट दे कांट बी बियरिंग हीट, हीट बर्दाश्त नहीं होता है उनसे, तो ये समर का मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। और लेकिन जब विंटर की बात आती है तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर, नहीं, 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, उससे ऊपर ही मेंटेन करना है, 13-14 से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ वैरायटीज़ की मैंने आपसे बात कर दी, कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिंगल कॉम वाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ रॉक, कॉर्निश, न्यू हैम्पशायर, जर्सी ब्लैक जायंट, ठीक है, ये सारे होते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चलता है, मतलब इंडिया ही नहीं बोलो, एशिया में चलता है, करकनाथ, टिट्री, ब्रह्मा, कोचीन, लैंगहैंस, ये सारे वेराइटीज़ के नाम है चिकन के, ठीक है। सो द पोल्ट्री मैनेजमेंट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब बात आती है कि ये डिजीज़ वगैरह से इनको बचा के रखना है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के मैं आपको नाम बताता हूँ, ठीक है, जो इनको बचा के रखना है डिजीज़ वगैरह से, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ बीइंग मेंशन्ड हियर और नॉट, लेट मी जस्ट चेक द PDF, इट्स नॉट डिस्कस्ड मच, ठीक है, बट लेट मी टेल यू सम डिजीज़ नेम। कुछ वायरल डिजीज़ के नाम बताता हूँ। न्यू कैसल डिजीज़ या रानी खेत डिजीज़ बोलते हैं चिकन, ये पोल्ट्री की डिजीज़ बता रहा हूँ मैं ओनली, ठीक है। रानी खेत डिजीज़ और न्यू कैसल डिजीज़, ये पारामिक्सो वायरस से होता है, ये सिंपल कोल्ड कफ की तरह होता है उनके लिए। देन मैरेक्स डिजीज़, ये हर्प्स वायरस से होता है। फाउल पॉक्स, ये पॉक्स वायरस से होता है। एवियन एन्सेफेलोमाइलिटिस, ये पिकोमा वायरस से होता है, ठीक है। इनमें हेड वगैरह, नेक वगैरह में इन लोगों के पैरालिसिस होती है। देन बर्ड फ्लू, H5N1, इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं इसे, ठीक है। वायरल डिजीज़ कौन मैंने बताया, रानी खेत डिजीज़ और न्यू कैसल डिजीज़ भी बोलते हैं। मैरेक्स डिजीज़ हर्प्स वायरस से, फाउल पॉक्स पॉक्स वायरस से, एवियन एन्सेफेलोमाइलिटिस, एन्सेफेलो से पता है ब्रेन से होगा, ठीक है, दैट इज़ बाई पिकोमा वायरस। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस। देन बैक्टीरियल डिजीज़ कुछ होते हैं, जैसे कि स्पाइरोकीटोसिस, टिक फीवर बोलते हैं इसे, TIC के टिक फीवर।
स्पाइरोकिटोसिस दैट इज caused by a spirochete, that is Borrelia enserina and transmit होता है एक टिक की वैरायटी से. ट्रिक इज एन इंसेक्ट. आर्गस पर्सिकस से होता है. ठीक है. दूसरा है इन्फेक्शियस कोराइजा, ये हेमोफिलस पैरागैलेडियरम से होता है. ठीक है. हेमोफिलस पैरागैलेडियरम से होता है. तो इसमें भी नाक, आइज़, फेस वगैरह से डिस्चार्ज होता है, लिक्विड डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग वगैरह होती है. देन पुलोरम डिजीज़. ठीक है. ये साल्मोनेला पुलोरम से होता है उनके लिए. ठीक है. ये भी एक तरीके का रेस्पिरेटरी और डायरिया टाइप की डिजीज़ है. देन तीसरा मैं बताऊंगा फंगल डिजीज़ में भी एक दो डिजीज़ है, जैसे एस्परजिलोसिस. दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूमोनिया फॉर व्हाट यू कॉल दैट पोल्ट्री, जो चिकन्स वगैरह था उनके लिए. एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है ये, इसी का नाम भी है एस्परजिलोसिस. देन माइकोसिस कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है. ठीक है. इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करता है, उनका कलर पूरा डल हो जाएगा. माइकोसिस को कैंडिडियासिस भी बोलते हैं क्योंकि कैंडिडा से होता है ये. प्रोटोजोअन है कोक्सीडोसिस होता है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ भी होती है इनको, जैसे पेरोसिस होता है इनके राशन में, जो खाना पीना हम देते हैं उसमें मैंगनीज़ की कमी हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड पेरोसिस डिजीज़. ठीक है. इनके जॉइंट्स बोन्स वीक हो जाते हैं. देन एनसेफेलोमलेशिया. ठीक है. विटामिन ई की कमी से होती है, इनका ब्रेन डिजनरेट होने लगता है. इम्पॉर्टेंट है ये लोग भी. फूड मिलता है जैसे चिकन वगैरह, क्या होता है प्रोटीन का सोर्स माना जाता है. ठीक है. फैट भी होता है, विटामिन ए, बी, डी, ये सब चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा. फिर एग्स तो लोग खाते ही हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. उसके फीडर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पंख वगैरह लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके जो मैन्योर होते हैं, मतलब कि फीकल मैटर्स जो होते हैं वो मैन्योर की तरह यूज हो सकते हैं. कहीं कहीं पे आप देखोगे कलर्ड चिकन्स होते हैं तो लोग उसको प्लेजर के लिए भी रखते हैं अपना. लोगों को देख, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एनिमल्स वगैरह पसंद होता है, तो वो भी अच्छी चीज़ है. कहीं कहीं कॉक फाइटिंग होती है, मुर्गों को लड़ाया जाता है. तो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. अब तो ये बात हो गई कि क्यों ज़रूरी है, क्या है. अब आती है एक टॉपिक, एनिमल ब्रीडिंग की बात करेंगे. किसकी? एनिमल ब्रीडिंग की. ठीक है. एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है? एनिमल ब्रीडिंग जो होता है, देखो सपोज़ करो एनिमल्स हैं. ठीक है. उनका अपीयरेंस, साइज़, फीदर, जो कुछ भी, जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग क्या हैं, होमोसेपियंस. हम लोग हाथ पैर साइज़ सब कुछ सेम जैसा, तो बिलोंग टू वन ब्रीड. मीन्स वन ब्रीड का मतलब होता है स्पीसीज़. ठीक है. एनिमल ब्रीडिंग वही चीज़, उनमें भी तो उनकी भी अपनी स्पीसीज़ होती है, ब्रीड होती है. जैसे हमने बताया चिकन का भी मैंने बताया, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ, अलग अलग, कड़कनाथ. तो एनिमल ब्रीडिंग का मतलब प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड वेराइटीज़. ठीक है. या इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय इम्प्रूविंग देयर जेनोटाइप्स थ्रू सेलेक्टिव मेटिंग. मतलब दो अलग अलग स्पीसीज़ वगैरह को रिप्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि और अच्छी वेराइटी बनाई जा सके. दैट इज़ कॉल्ड एनिमल ब्रीडिंग. तो एनिमल ब्रीडिंग इज़ प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है. हम सेलेक्ट करते हैं खुद से मेल एंड फीमेल और ब्रीड उनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं ताकि और अच्छी क्वालिटी का क्या कर सकें, फार्म एनिमल प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि इल्ड बढ़े. इल्ड मतलब प्रोडक्ट बढ़े, प्रोडक्ट अमाउंट बढ़े, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो चाहिए मुझे वो उसके अंदर बढ़े. अब सपोज़ करो एक जैसे जर्सी गाय है कि क्यों जाना जाता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए. तो इस इज़ अ ब्रीड. एक इंडियन वैरायटी और एक बाहर की वैरायटी, दोनों को रिप्रोड्यूस करवाया गया आपस में ताकि ये हाई मिल्क क्वालिटी पे प्रोडक्शन की जो क्वालिटी विदेशी एनिमल में थी वो इंडियन में आ सके. तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रीड. ठीक है. फ़ायदा क्या होता है? इम्प्रूव्ड ग्रोथ होता है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, वुल, सुपीरियर क्वालिटी होंगी इन सब सारी चीज़ों की. सुपीरियर क्वालिटी भी होगा और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन भी होगा. देन इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू वेरियस. सपोज़ करो एक गाय है जिसकी मिल्क क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, और एक गाय है जो डिजीज़ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, उसको बीमारी बहुत जल्दी नहीं होती. तो दोनों को रिप्रोड्यूस करवा दिया जाता है आपस में. तो उससे क्या होगा,
हाई मिल्क प्रोडक्शन की भी क्वालिटी आ जाएगी और डिजीज़ रेजिस्टेंस की भी। तो इसी को बोलेंगे एनिमल ब्रीडिंग। प्रोडक्ट लाइफ ज़्यादा हो सके, एनिमल लाइफ ज़्यादा हो सके, ठीक है, अच्छा रिप्रोडक्शन रेट रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता हो। अभी जो एनिमल ब्रीडिंग होता है ये 2-3 तरीके से अपनाया जाता है। हमें जो पढ़ना है दैट इज़ अबाउट इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, ठीक है। अब देखो इन ब्रीडिंग ही है, तो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है दो एनिमल जो सेम ब्रीड के होते हैं, ठीक है, नाम ही इन ब्रीडिंग, विद इन द ब्रीड मीन्स ब्रीडिंग इज डन बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। जनरली 4 to 6 करवाया जाता है, 4-6 जनरेशन तक एक ही स्पीसीज़ के लोगों को, मतलब यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, काउस, बफेलोज, बुल्स, इन सब चीज़ों की। तो इनको मेटिंग करवाया जाता है ताकि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ काउज एंड बुल्स वगैरह प्रोड्यूस किए जा सकें, ठीक है। और फिर उनकी क्वालिटी को इवेलुएट किया जाता है, चेक किया जाता है। अब जनरली काऊ और बुल की बात करोगे तो काऊ इज़ व्हाट, फीमेल, एंड बुल इज़ व्हाट, मेल। तो एक सुपीरियर फीमेल वो हो सकती है मेल जो बहुत काऊ है तो वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, राइट। एंड सुपीरियर मेल मतलब बुल की बात करेंगे तो वो कौन हो सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, काऊ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। अब उसमें क्या है, इन दोनों की ब्रीडिंग करवाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये होता है कि दोनों क्या सेम स्पीसीज़ के हैं, ठीक है। तो चीज़ें होमोजाइगस हो जाती है, मतलब एक सेम जीन ही बढ़ता जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा 4-6 जनरेशन के बाद फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं रह जाता है, बिकॉज वी आर गेटिंग प्योर लाइन। दो अलग अलग स्पीसीज़ को रिप्रोड्यूस हम नहीं करवा रहे, बस विद इन द सेम स्पीसीज़ दो ऐसे जानवर लिया हमने जिनकी अपनी अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि काऊ जो है फीमेल, मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, मेल जो है दैट इज़ कंपेयर टू अदर मेंबर्स उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छा है, लेकिन दो बोथ बिलोंग टू सेम स्पीसीज़। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को, ब्रीडिंग को इन ब्रीडिंग बोला जाता है। लेकिन चूंकि सेम के हैं तो इनके अंदर क्या होगा, जीन स्ट्रक्चर सेम है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, मतलब कि इन ब्रीडिंग के कारण जो एनिमल प्रोड्यूस होता है वो प्योर लाइन कहलाता है। तो इनको जनरली 4-6 जनरेशन के बाद इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है, क्योंकि सेम ही जीन्स है, राइट। तो उससे इम्प्रूव क्वालिटी एक टाइम के बाद क्या होने लगती है, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी दोनों डिक्रीज़ करने लगती है। तो जब ये होने लगता है तो उसे बोला जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब इन ब्रीडिंग के कारण चीज़ें डिप्रेस हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज़ ड्यू टू कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन 4-6 जनरेशन तक किया जाता है, क्योंकि दो अलग एनिमल्स भले ही सेम स्पीसीज़ के हैं लेकिन अलग अलग क्वालिटी हैं, तो जो उनको रिप्रोड्यूस करवा दिया गया तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सब कुछ आ गया। दूसरा है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। आउट ब्रीडिंग, अब नाम ही है आउट ब्रीडिंग, इसमें दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं या तो सेम ब्रीड के या डिफरेंट ब्रीड्स के, मतलब डिफरेंट स्पीसीज वगैरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। देखो इन ब्रीडिंग क्या था, वो भी सेम ब्रीड के अंदर ही था लेकिन एंसेस्टर सेम होते हैं उनके। लेकिन यहाँ पे आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, यहाँ भी सेम ब्रीड के अंदर करवा सकते हैं बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, मतलब 2 डिफरेंट ब्रीड्स, ठीक है, और इवन 2 डिफरेंट स्पीसीज, ये 3 तरीके हैं, ठीक है। अब आउट ब्रीडिंग हमने बताया 2-3 तरीके हैं, तो इसमें अब बात करते हैं कैसे। सबसे पहले हमने क्या बताया, मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, तो इसको बोला जाता है आउट क्रॉसिंग। क्या कहते हैं इसे, आउट क्रॉसिंग। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीडिंग एनिमल्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट, बीफ वगैरह जो लोग खाते हैं, पॉर्क वगैरह खाते हैं, उन चीज़ के लिए, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे एंसेस्टर कॉमन नहीं है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ज़्यादा नहीं होता है। पहला वाला जो हमने इन ब्रीडिंग किया वो भी यही था, ध्यान से सुनिएगा, सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, लेकिन वहाँ पे एंसेस्टर सेम होता है। आउट ब्रीडिंग में फिर से विद इन द सेम ब्रीड वी आर रिप्रोड्यूसिंग फॉर 4 to 6 जनरेशन बट द एंसेस्टर्स आर नॉट सेम, नो कॉमन एंसेस्टर्स। सो सच अ ब्रीड आउट ब्रीडिंग इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग का ही टाइप देख रहे हैं, आउट क्रॉसिंग। दूसरा आउट ब्रीडिंग का टाइप है क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ पे
मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विथ फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ब्रीड ही अलग अलग है तो जो प्रोडक्ट होता है वो बेटर ब्रीड बनता है। ठीक है, इसमें काउज जो होता है, दो ब्रीड है तो मान लो एक सुपीरियर ब्रीड होगा और एक इन्फीरियर ब्रीड होगा, तो काउ ऑफ इन्फीरियर ब्रीड कैन बी मेटेड विथ बुल्स ऑफ सुपीरियर ब्रीड। ठीक है, एक हिसार डेल है, इसमें क्या हुआ, एक शिप का एक वैरायटी है, तो इसमें क्या किया गया था कि इसको बनाया गया था, बीकानेर में यूज़ मिलते हैं और पंजाब में मैरिनो रैम्स मिलते हैं, तो इनको मतलब कि क्रॉसिंग बिटवीन बीकानेरी यूज एंड मैरिनो रैम्स प्रोड्यूस्ड हिसार डेल विच इज़ अ न्यू वैरायटी ऑफ शिप। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, आउटब्रीडिंग में कौन सा, क्रॉस ब्रीडिंग। एंड देन देयर इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जाहिर सी बात है यहाँ पे तो स्पीसीज ही हम बदल दिए। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल्स आर टू डिफरेंट स्पीसीज। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है म्यूल, आपको पता हो हिंदी में बोलते हैं खच्चर। कैसे वो प्रोड्यूस होता है, म्यूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। ठीक है, दे आर हार्डर दैन देयर पेरेंट्स, वेल सूटेड फॉर हार्ड वर्क इन माउंटेनियस रीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, देन इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।